Hello, students. Very good afternoon to all of you. Myself Devesh Singh from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear children, today we are also going to study the next portion of this chapter, Rue at the Ceremony. This is the third page of the chapter, and we have to proceed this chapter from this line from page number 136. In the last passage, students, you have read about the excitement of this boy, Ru, as his cousin and his uncle was coming at the harbor from Earth, and there is a lot of excitement in his heart to think about their coming, as they will bring a lot of dress, toys, and many more things for him. So he is looking very excited. Now let's see this line. He made a bundle of a spare set of clothes and to change into water after the ritual, and then dejectedly made his way to the great bath. This boy, this boy, Ru, finally he collected a set of clothes for him, as after his bathing he has to move towards the destination. Just complete this bathing. That was a great bath, water ritual ceremony for him, and just after completing this process he has to move towards the destination. Dejectedly made his way means move to the destination where you have to reach. On any other day, it would have been an honor and a pleasure to be taking part in the ceremony. यहाँ पे राइटर्स कह रहे हैं कि जो राइटर हैं मोनिशा मुकुंदन, शी सेज दैट कि अगर बात ये दूसरे दिन की होती तो ये रू के लिए काफ़ी एक ऑनर की बात होती, प्लेजर, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस की बात होती, क्योंकि उसे एक सेरेमनी में टू बी टेकिंग पार्ट इन द सेरेमनी, एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना था, स्थान लेना था, भाग लेना था. बट टुडे ऑल हिज थॉट्स वर ऑन द बोट इन विच हर वॉज कमिंग. लेकिन आज क्या था, आज वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उसका माइंड थोड़ा भी कंसंट्रेट नहीं कर रहा था उस सेरेमनी को लेकर के. क्यों? क्योंकि जो उसका कजिन ब्रदर हर था वो बोट से आ रहा था, और उससे मिलने के लिए जो यहाँ पे बॉय रू है, ही इज़ एक्सट्रीमली रेस्टलेस टू मीट हिज कजिन ब्रदर, एंड ऑल्सो ऑल द गुड्स दैट देयर अंकल वुड ब्रिंग. और उसके जो अंकल भी आ रहे थे, वो आते थे तो बहुत सारा सामान लेकर आते थे, उनके लिए चीज़ों को लेकर आते थे. तो उन सारे मैटर्स को सोच करके ही वॉज अनेबल टू कंसंट्रेट हिमसेल्फ टूवर्ड्स द सेरेमनी, सो ही इज लुकिंग वेरी रेस्टलेस एट दिस टाइम. Oh, he didn't know how he would concentrate enough to remember all that he had to do today. And this was not able to know that how he will be able to concentrate, how he will be able to remember all the things during the ceremony, as this day was a very busy day for him, as at the ceremony he will also make run his mind at the home about the coming guests. And if he made a mistake, और उसके पास एक और यहाँ प्रॉब्लम थी कि अगर वो कंसंट्रेट नहीं करता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक भी करता है, तो रिसाइडेड टू इवन थिंक ऑफ दैट. कोई भी मिस्टेक के बारे में सोच कर ही वो काँप उठता था, वो बिल्कुल काँप उठता था किसी भी मिस्टेक के बारे में ही सोच करके, कि हाउ वुड हैव टू मेक श्योर he did his part correctly.
ही वुड हैव टू मेक श्योर ही डिड हिज पार्ट करेक्टली, इसलिए वो अपने हिस्से के काम को बिल्कुल करेक्टली करने के लिए वो बिल्कुल सोचता रहता था, श्योर हुआ था कि कहीं से भी कोई मिस्टेक अगर हुआ तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि द हेड प्रीस्ट डिडंट अलाउ मिस्टेक, जो हेड प्रिस्ट थे वो हेड प्रिस्ट बिल्कुल किसी मिस्टेक को अलाउ नहीं करते थे। अब नाउ हियर योर क्वेश्चन, हु इज हेड प्रिस्ट? Who is head priest? You can see here in this figure, student, this man, this old man is a head priest here, and this boy is Ru here. This boy is Ru here, who is also going to join the ceremony with head priest. Okay, let's see the head priest. The head priest didn't allow mistakes, especially if you were among the older children. और हेड जो प्रिस्ट थे वो बिल्कुल इस तरह की किसी भी मिस्टेक को अलाउ नहीं करते थे। सेरेमनी के दौरान जो भी वहाँ पे वर्ड्स थे, जो लाइंस जो वहाँ पे रीड करना था, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वो भी उस समय जब ओल्डर चिल्ड्रन के बीच में रह करके इस चैंटिंग करना हो, लाइंस को चैंट करना हो, श्लोक्स को चैंट करना हो, तो उस समय तो किसी भी मिस्टेक को किसी भी कीमत पे वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। Entering the great bathroom made his way to the residence of the head priest. Finally, जो यहाँ पे बॉय रू है वो अपना ग्रेट बाथ को, अपने उस हॉली बाथ को, पवित्र स्नान को कंप्लीट करने के बाद फाइनली ही मूव टूवर्ड्स द रेजिडेंस ऑफ हेड प्रिस्ट। हेड प्रिस्ट के रेजिडेंस पे, घर पे, उनके आवास की तरफ वो चल दिया। He tried to strengthen his drooping soldier, और जो उसकी सोल्जर उसमें ड्रोपिंग हुई थी, झुकी हुई थी, सोच में, तनाव में था, उसको बिल्कुल स्ट्रेंथन करने का, सीधा रखने का, उस पर कंसंट्रेट करने का वो प्लानिंग किया, सोच के रखा था, प्रयास किया था। एंड मूव पर्पसफुली, और सोचा था कि जहाँ पर्पसफुल होगा वहीं पे वो मूव करेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल एज वेल एज लाइक बिफोर इट वो खुद को मेंटेन रहेगा। बट ऑल हिज थॉट्स वर ऑन द पाथ, लेकिन पाथ मीन्स मार्ग, वे, रास्ता, लेकिन पूरे रास्ते पर जो उसकी थाट्स थी, जो उसकी विचार थी, वो तो सिर्फ उसी जगह पे थी। कहाँ पे? दैट डैमी एंड हिज फादर, डैमी इज द नेम ऑफ रू सिस्टर, एंड हिज फादर वुड टेक ऑन देयर वे टू द हार्बर, कि हार्बर के लिए वे निकले होंगे। सिटिंग इन द बुलक कार्ट में बैठ करके, दैट ही हैड अरेंज्ड फॉर द लगेज, जिस बुलक कार्ट को वे लोग लगेज को लाने के लिए अरेंज किए थे, सामान को लाने के लिए किए थे, उसी में बैठकर वे लोग जो हैं हार्बर के लिए, उस समुद्र के किनारे बंदरगाह पर पहुंचने के लिए निकल पड़े होंगे। इस तरह की पूरी बात रास्ते पर जो रूस सोचता रहा जब वो हेड प्रिस्ट के रेजिडेंस पे जा रहा था। So, Ru, are you ready? Called a woman voice from behind the big neem tree in the courtyard. तो कोर्टयार्ड में अहाते में एक बड़ा सा जो नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के पीछे से अचानक एक जोर से आवाज आई, एक जोर की आवाज आई। रू लुक्ड अप विद अ स्टार्ट, जैसे ही आवाज आई रू अचानक झटके में उस तरफ देखा। एंड बोर्ड लो टू ग्रीट द हेड प्रिस्ट, बोर्ड लो मीन्स काफ़ी नीचे तक झुकना, अभिवादन करना, और फिर हेड प्रिस्ट का अभिवादन करने के लिए वो जमीन पर झुका।
यस ही ममड, और फिर ममड करते हुए बड़बड़ाते हुए वो कहा यस, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। टचिंग हिज हेड टू द ग्राउंड, और इस हाँ के सहमति को शो करने के लिए वो फिर से अपने सर को जमीन पर झुकाते हुए अपनी उसने सहमति को प्रदान किया कि यस यस ही इज रेडी। But your mind is clearly somewhere else, the old man said, adjusting his shawl. लेकिन जो हेड पृष्ठ थे वो अपने शॉल को जो बॉडी पे यू कैन सी इन द फिगर, वियर्ड अप इन दिस फिगर यू कैन सी दिस हेड पृष्ठ had wore a shawl over his body. So, adjusting his shawl, the old man, means this head priest, said that, but your mind is clearly somewhere else. तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मस्तिष्क तो कहीं और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो तुम्हारा सेरेमनी में जाने के लिए तुम्हारा मस्तिष्क नहीं प्रतीत हो रहा है। He smiled gravely, और काफ़ी ग्रेवली सीरियसली उन्होंने स्माइल किया। Is there news of the boat from Ur? Ur is the name of place, or very soon this head priest was able to understand or to read the mind of this boy. So he asked the very correct question that is there news of the boat from Ur? क्या वहाँ से न्यूज़ कोई नहीं है अर से आने के लिए बोट का? इट हैज़ बिन साइटेड, हेड पृष्ठ। तो अब जब रूह को लग गया कि हेड पृष्ठ तो पूरी बात को समझ गए, जान गए, उनको पूरी बात की जानकारी हो गई, तो फाइनली अब अपने आप को, अपनी बातों को कैसे छिपा सकता था, इसलिए सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ओपन करने के लिए फाइनली रूह ने कहा इट हैज़ बिन साइटेड, हाँ ऐसा देखा गया। साइटेड में देखना, दृश्य, ऐसा देखा गया है कि नाव आ रही है, हार्बर पहुंचने वाली है। हेड पृष्ठ को उसने बताया। रू ने बताया, स्टेयरिंग डाउन एट द ग्राउंड, और अब जो उसकी सच्चाई पूरी उस हेड पृष्ठ को पता चल गया तो काफ़ी शर्माते हुए, ज़मीन पर स्टेयर करते हुए, ज़मीन को ही देखते हुए उसने इस बात को गुरुदेव के सामने सुनाया। इट सीम्स टू मी दैट योर माइंड विल नॉट बी ऑन द सेरेमनी टुडे रो। और जब गुरुदेव को इस बात की जानकारी हो गई तो उन्होंने कहा इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है दैट योर माइंड विल नॉट बी, तुम्हारा मस्तिष्क यहाँ पर तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करेगा ऑन द सेरेमनी टुडे, सेरेमनी, आज के सेरेमनी पर, कार्यक्रम पर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेगा। रो, ऐसा रो से गुरुदेव ने कहा। नो, ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, नो हेड प्रीस्ट रू स्टैमर्ड। अब रू वहाँ पे स्टैमर्ड करते हुए, हकलाते हुए बोलता है कि नहीं हेड प्रीस्ट, नहीं, यह बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आई एम रेडी फॉर द रिचुअल एंड सी हियर इज माई सील। और फिर उसने बताया कि नहीं, वो तो उस प्रोग्राम में जाने के लिए, सेरेमनी में जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और प्रूफ के लिए उसने अपने हाथ में ली हुई उस सील को भी दिखा दिया। सील को आप समझ सकते हैं, जो हाथ में लिया हुआ है, रूह के हाथ में एक सील है, इसमें एक काऊ बनी हुई है, उसी को दिखाया। उसी को कथा पूजा होता देखते हैं, तो गंगा गौरी गणेश को लेकर पंडित जी लोग आते हैं एक डब्बे में, वो इसी चीज़ को सील बोलते हैं। यहाँ पर रूह भी उस सील को लिया हुआ है, इसमें गाय माता उसमें है, तो उसको दिखा करके बताता है
कि आई एम रेडी फॉर द रिचुअल एंड सी हियर इज़ माई सील, और बताया कि मैं बिल्कुल रिचुअल को तैयार हूँ और आप देख सकते हैं यही मेरा सील है, जिस सील को भी लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड ही हेल्ड आउट हिज स्पेशली डिजाइंड सील, और फिर इतना सब कुछ कहने के बाद वो जो स्पेशली डिजाइंड सील था, उस स्पेशली डिजाइंड सील को उसने गुरुदेव के सामने फैला दिया। Now here are some word meanings, students. You will learn all these word meanings, and just after learn the word meaning, you will also write the summary of this explained portion in your own words. Okay, students.